غدار بنے غدار کو، آؤ مل کر مزہ چکائے تبدیلی سرکار کو۔ نہیں ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا، جس میں پاکستان کی اہم اپوزیشن جماعتوں کے ورکروں اور حامیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے ریلی کی قیادت کی۔ محترم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی قیادت میں اور جمعیت علماء اسلام حلقہ 53 کے امیر نور احمد شاہ صاحب کی قیادت میں آنے والی ریلی کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آنے والے کارکنوں سے درخواست کروں گا۔ ریلی میں شریک قائدین اور شرکاء کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرزانہ کوثر، جیسا کہ آج سب جانتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج ہم اس مہنگائی کے سلسلے میں ہمارا یہ پروٹیسٹ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم کتنے پروٹیسٹ کر چکے ہیں کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو کہہ رہے تھے کہ پیٹرول 45 روپے لیٹر ہو، اب ان کی گورنمنٹ میں 200 تک جانے والا ہے پیٹرول۔ اب انٹرنیشنل ریٹ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریٹ ہے۔ میرے خیال سے انہیں اس وقت نہیں پتہ تھا کہ یہ انٹرنیشنل ریٹ ہے، اور آج انہیں آ کے پتہ چلا ہے، اور انہوں نے دیکھیں آپ کی تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، تنخواہیں آپ کی 1 روپیہ بھی نہیں بڑھی، اور مہنگائی جو ہے 50% سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اس وقت کہہ رہے تھے سول نافرمانی کرو، بل جلاؤ، یہ کرو وہ کرو، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بل بھی دینا ہے، گھر کا بل بھی، ٹیکسز بھی، سب چیزیں، اور حکومت پہ ناجائز جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ ایک بندے کی اگر 30,000 سیلری ہے تو وہ اس میں بچے بھی پالے گا، کرایہ بھی دے گا، ٹیکس بھی دے گا اور بل بھی دے گا، تو اس کے بعد پھر وہ کرپشن ہی کرے گا۔ میرے حساب سے چور بازاری آپ نے دیکھ لی ہے کتنی زیادہ ہو گئی ہے اب اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے، اور سب نالائق بٹھائے ہوئے ہیں۔ حکومت خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 22 سال میں نے اسٹرگل کی ہے، 22 سال انہوں نے اسٹرگل صرف جو ہے نا فراڈ اور جھوٹ بولا ہے، اور صرف جو ہے انہوں نے لوگوں کا پرووک کیا ہے کہ آپ آئیں حکومت گرانے کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی بات نہیں کی، اور وہ صرف جو ہے نا اپوزیشن اچھی کر سکے۔ اور اس کے بعد آج جب حکومت میں آئے ہیں تو انہیں پتہ چلا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کتنی مشکل چیز ہے۔ ایک گورنمنٹ، ایک جو حکمران ہوتا ہے وہ سب کو لے کے چلتا ہے اور سب کا خیال رکھتا ہے، لیکن خان صاحب کو کسی کا کوئی خیال نہیں ہے سوائے اپنے اور سوائے اپنی ایلیٹ کلاس کے۔ جی، میرا نام شازیہ ساجد ہے اور میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان مسلم لیگ نون سے، PP 18 راولپنڈی سے۔ آج ہم یہاں پہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف جو ہے پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اور دن بدن چیزوں میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے ان کی قیمتوں میں، اور جو ایک غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں۔ دوائیاں دیکھ لیں آپ، پیٹرول دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں آپ، کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سلیکٹڈ حکمران ہیں جناب نیازی صاحب، یہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ جب ملک میں مہنگائی ہو تو ملک کا حکمران چور ہوتا ہے۔ یہ کیونکہ ایک دفعہ نیازی صاحب نے اپنے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی بھی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ آپ یقین کریں کہ PTI والے بھی جو ہیں وہ رو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا ملی ہے جو ہم نے ایسے شخص کو اپنے اوپر لا کے مسلط کیا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آئیں، مہنگائی کے خلاف باہر نکلیں، اور اس حکومت سے، یہ جو سلیکٹڈ اور نااہل حکومت ہے، اس سے جتنا جلدی ہو سکے آپ چھٹکارا حاصل کریں۔ میں گلناز اختر سدوزئی نون لیگ کی کونسلر ہوں۔ اصل میں بات ہر ایک انسان کو پتہ بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ یہ بندہ جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں مہنگائی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں اور سچائی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں، حالانکہ اس نے بہت زیادہ کرپشن کروا دی ہے۔ لوگ، عام انسان جو کرائے دے رہا ہے، جو بجلی کے بل دے رہا ہے، کھانے پینے کا 3 ٹائم سے وہ 1 ٹائم پہ آ گیا ہے، اور اتنا ملک کے حالات خراب ہیں، بجلی کے بل اور گھر کے کرائے دینے والا انسان مجھے بتائیں وہ 17,000 16,000 مزدوری پہ وہ کیسے گزارا کرے گا؟ اور اس بندے نے کہا تھا کہ میں گھر بنا رہا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، 35 لاکھ میں یا 40 لاکھ میں جو گھر بن رہا ہے، اگر وہی بندہ بناتا ہے تو وہ 15 لاکھ میں 10 لاکھ میں بناتا ہے، وہی کرپشن دکھا کے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں 35 لاکھ میں، یہ اپنے لیے پیسے ایٹ رہا ہے یہ بندہ، تو یہ تو کوئی
कोई स्कीम ना हुई कि जो मैं कर रहा हूँ और गरीब आवाम के लिए कर रहा हूँ। पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है कि दुनिया की हर चीज़ उससे महंगी होती है। एक पेट्रोल हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, मगर जो सब्ज़ी वाला है, जो गाड़ी में बैठता है एक इंसान, वो 20 रुपये किराया दे रहा था कि मौजूदा वक्त में वो एक स्टॉप का 30 रुपये किराया दे रहा है। और आप मुझे बताएं कि जो काम करने वाली औरतें हैं, जो मज़दूर तबका है, उसके लिए कितनी मुश्किलातें आ गई हैं। तो इस बंदे को फिर फौर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, यही इसके लिए बेहतर है, क्योंकि हर इंसान मजबूर है मौजूदा। वो चोर डकैतियाँ, फ्रॉड, बेईमानियाँ, ये सब कुछ वो करने पे आ गया है। क्यों? मैं मिनॉरिटी से हूँ, मेरा नाम साबरा है और मैं मुस्लिम लीग नून की कारकुन हूँ और वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद की, और NPCH गवर्नमेंट पाकिस्तान की चेयरपर्सन हूँ डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की। हम लोग यहाँ सारी पार्टीज़ की तरफ से आए हैं, हम लोग आम पब्लिक की तरह आए हैं, पूरे अमन हमारा एहतजाज है। और हम लोग जो है एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में महंगाई जो आसमान को छू रही है। देखें, इसने न्याजी साहब ने, सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वज़ीरिस्तान का एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसमें कोयला था, और जिधर कोयला होता है वहाँ से हीरे भी निकलते हैं। इसने सऊदीया को ठेके पे दिया और कहा कि इसके इवज़ हमें 2-3 साल जो पेट्रोल है वो मुफ्त मिलेगा। मुझे बताएं वो पेट्रोल किधर जा रहा है? ये हर चीज़ चोरी कर रहा है। ये आटा चीनी जो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है उसका भी चोर है। ये अवाम की हर मुश्किलात का शुरू है और आज इसका एंड हो गया है। हम लोग इसको अब जो है आगे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अवाम अगर रोड पर आ गए हैं तो वापस किसी बात पे जाएंगे। हम लोग अपनी जान देने से भी ग्रेज नहीं करेंगे। हमें इससे इस्तीफ़ा चाहिए, क्योंकि इसने खुद धरने में कहा था कि अपने बिजली के बिल फाड़ दें, क्योंकि जिस मुल्क में बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं उस मुल्क के जो वज़ीर आज़म होता है वो चोर होता है। तो इस चोर को अब खुद चला जाना चाहिए। चोर अपनी सज़ा से पहले चला जाए तो उसके लिए ठीक है। और मैं अपने कौम, मसीही कौम के लिए कहती हूँ कि इसने कोई सीटें नहीं दी। जो भी पार्टी आती तो आपके आगे खुदा के लिए दाढ़ चढ़ दें, कुर्सी छोड़ दें। हम आपसे बहुत तंग आ चुके हैं, हमारे बच्चे रोल गए, हम सब रोल गए। खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें बस। जी, मेरा नाम साजिदा जाहिद है। ये पैगाम दे रहे हैं PML NA 53 से है इंशाअल्लाह अब और आज हम लोग निकले हैं, वक्त खत्म हो चुका है, एहतजाज कर रहे हैं। अब कौम को हमने पहले भी प्रेस क्लब के सामने तुमसे एहतजाज निजात किया था। दिलवाई और आज जाएगी। भी हम लोग आए हैं और हम मैं लोग निकले महमूद महंगाई के खान खिलाफ अजगज़ई, निकले हैं, क्योंकि हम लोग मुशर्रकी हमारी जमात बर्दाश्त से अब चीज़ें बाहर हो रही हैं, महंगाई बाहर हो रही है। मुबारकबाद हमारा पेश जो करता गरीब, हूँ जो हमारे कि गरीब जो आवाम है, एक कसीर हम लोग जो तादाद हैं में यहाँ हम लोग तशरीफ महंगाई लाए से मर रहे हैं। हैं। और मैं डॉक्टर हमारे साहब जो और दीगर जनाब जिम्मेदारान से इमरान खान कहूँगा हैं, कि वो उन्होंने स्टेज कहा पर था कि तशरीफ ले अगर आएं। आपके बिल ज़्यादा आएँ तो हुकूमत जो है वो करप्ट है, अगर आपकी महंगाई हो रही है तो हुकूमत करप्ट है। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उन्होंने जो है जो जरिया था हमारी यूथ को बनाया, यूथ को वो साथ लेके चले, लेकिन हमारी यूथ जो है वो पहचान चुकी है अब ये सब कुछ गलत है, कुछ सही नहीं हो रहा। अब हम लोग सारे जो हैं हम लोग सारे जो हैं अब निकले हैं और हम लोग भी अपनी यूथ को लेकर निकलेंगे। हमारी आने वाले तमाम अवेयरनेस आ चुकी है और इंशाल्लाह जो है हम इस पुरअमन एहतजाज है जो कामयाब करेंगे और इस हुकूमत को गिरा के रहेंगे इंशाल्लाह। ये इस नाअहल नालायक हुकूमत ने जो लोगों का जीना दोभर कर दिया है, कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू चुकी हैं, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। सब घर से लोग अपने निकल आए हैं और उन्होंने कहा है कि बस अब तंग हो चुके हैं। इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, इस हुकूमत ने, नालायक हुकूमत ने, बल्कि इतने टैक्सेस लगा के और इतना ज़्यादा महंगाई करके लोगों को अजाब में डाला हुआ है। ये सब एक आवाज़ हो के महंगाई के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, उसके साथ साथ बच्चों के पास जॉब नहीं है। आप किधर जाएंगे लोग? इन्होंने ला के सड़कों पे इन्होंने कहा हम घर देंगे, इन्होंने कहा हम आपको प्रोवाइड करेंगे घर भी, और कुछ भी नहीं करके दिया, सिर्फ झूठे वादे। अब बस कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं। इन्होंने जो कहा इसका उल्टा करके दिखाया, इसको क्या कहेंगे आप? तो इसलिए ये सारे लोग निकले हैं कि आज महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हर चीज़ महंगी, क्या वो बिल दे सकती है? एक घर का खर्चा, एक जो खातून खाना चलाती हैं, क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो इस तरह के दौर में जिसमें महंगाई जो है वो आसमान पे है, वो कैसे बिल्स देंगे, वो कैसे बच्चों की फीसें देंगे? और खुदा ना करे कि
बीमार हो जाए तो दवाइयाँ कहाँ से लेके आएंगे? जो कीमतें हैं दवाइयों की वो भी आपके सामने है। क्या एक चीज़ आप मुझे किसी से पूछ लें आप यहाँ पे, क्या एक चीज़ बता दें कि इस हुकूमत ने अच्छी की हो? इन्होंने जीना ख़राब कर दिया जिंदगियाँ। आज ये सब यहाँ पे कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर वो बहुत बेहतरीन दौर, तरक्की का सफ़र जो हम कर रहे थे, पाकिस्तान की एक शनाख्त दुनिया में हुई थी। पाकिस्तान में दुनिया में लोग कहते थे पाकिस्तान अब ये जो है पाकिस्तान जाके इन्वेस्ट करे, ये इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने एशियन टाइगर बनाने के लिए किया हुआ था और ऑलमोस्ट बन चुका था। 5.8% ग्रोथ थी। आज कहाँ खड़े हैं? पीछे ले गए हमें सारा। बस अब मैं समझती हूँ कि ये बहुत हो चुकी है, बस हो गई है, बस हो गई है। और अब आप देख लें कि इनके साथ होने क्या जा रहे हैं। ये खुद गिरने जा रहे हैं और गिर चुके हैं। कोशिश करें। आजकल के दौर में इतनी महंगाई कि गरीब बंदे की 30,000 तनख्वाह है और 40,000 बिजली का बिल आ रहा है और बच्चे पढ़ने वाले हैं तो कहाँ से पूरा किया जाए? जुल्म, इतना जुल्म के गरीब बंदे के लिए रोटी नहीं, मरीज के लिए दवाइयाँ नहीं, और ये कोई हुकूमत चला रहे हैं। और इस तरह तो नहीं होना चाहिए कि किसी बंदे का ख्याल ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दाऊद, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद। जिस तरह कि आज आपने देखा कि महंगाई के ऊपर जिस तरह लोग बाहर निकले, जिस तरह से ख़वातीन ने हिस्सा लिया इस चीज़ के अंदर, लोग तंग हैं और शदीद तंग हैं। आप मार्केट्स का हाल देख लें, आप एक जो कारोबारी तबका है, जो छोटा कारोबारी था वो तो आप समझ लें बिल्कुल उसने अपना तो वाइंड अप ही कर दिया कारोबार। और जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये पेट्रोल की महंगाई, आटा, जितनी घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसमें जो लेडीज़ जिन्होंने पीपल्स पार्टी PTI को जिस तरह वोट किया था, जिस तरह वो निकले थे, अब जब वो अपना किचन का जो उनका था एक बजट, उसके अंदर उसका हाफ भी सामान नहीं आता उनके उस बजट के अंदर उनका। तो और ये पेट्रोल की वजह से जो महंगाई है, सैलरी जो मामला जिस तरह से भी सारे मामलात हैं, ये लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत टफ हो गया है। अभी आपने देखा ये स्टार्टिंग थी, जिस तरह लोग निकले और आगे ये तहरीक। आप क्या समझते हैं कि जो पुरानी हुकूमतें थी, जैसे PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, उसमें क्या अच्छे इकदाम किए, और जो अभी हुकूमत है PTI है, उसने क्या ऐसा बुरा इकदाम किया कि जिसकी वजह से आप लोग एहतजाज करें इस पे? सर, नून लीग की हुकूमत और पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसमें आप देख लें कि पेट्रोल के प्राइसेस कभी इस तरह जम नहीं की कि 7 रुपये 8 रुपये हमने कभी नहीं सुना ये। ठीक है, पिछले महीने 8 रुपये थी, अब फिर सुनने में आ रहा है फिर 8 रुपये बढ़ी है कीमत पेट्रोल की। तो पहले बढ़ता था 1 रुपये 1.5 रुपये, फिर उसको रिवर्स कर देते थे, एक लेवल पे चल रहा था सारा काम। और जहाँ तक डॉलर का आप देख लें आप, इस टाइम डॉलर डबल हो गया। पहले डॉलर भी कभी ऊपर गया तो बहुत माइनस ऊपर जाता था, वही एक रेशो थी, लेकिन इस बार हर चीज़ डबल है। तो किसी भी तरीके से किसी भी कारोबारी बंदा हो या कोई जो जॉब्स जो लोग करते हैं, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता इस महंगाई के अंदर। शदीद महंगाई है, लोग तंग हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इनके पास एक ट्रैक नहीं है जिस पे चलेगी, कोई इनको बताने के लिए इनके पास नहीं है कि हमने क्या आगे करना है, फ्यूचर हमारा क्या क्या करना है हमने। एक इनका बंदा एक बयान देता है, दूसरा देता है, अवाम ब्लैंक है और महंगाई आपके सामने है। और जो आज जिस तरह लोग निकले, आज ये एक पहला स्टेप है। आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इनको घर बेच के इंशाल्लाह दम लेंगे हम। अच्छा ये बताएं सर जी, PDM में इख्तिलाफात ज़्यादातर चलते हैं, तो जब कोई आम मतलब इशू होता है तो उसमें PDM जो है इकट्ठी नजर आती है, लेकिन ओवरऑल PDM में इख्तिलाफात है, इसको कैसे देख रहे हैं सारा? ये देखें चलते रहते हैं, ये PDM में जो भी इख्तिलाफ है, आज आपने देखा है कि आपने मिल के सब ने इकट्ठा होकर एहतजाज किया है। तो इख्तिलाफात आपको पता है जमहूरियत का हिस्सा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो होता है। इख्तिलाफात क्यों है, ऐसे क्यों है कि एक पेज पे क्यों नहीं आते, सिर्फ महंगाई के खिलाफ नजर आते हैं, बाकी किसी भी मसले में जो वो एक साथ नहीं नजर आते हैं? अगर नून लीग की बात करें, नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इख्तिलाफ करती है, और जो उसके अलावा जमात उलमा इस्लाम पे अगर कोई बात, ये मौलाना फजल रहमान से भी वो जो इत्तेफाक नहीं करते, मतलब बहुत सी चीज़ों पे वो इत्तेफाक राय नहीं करते, इसको कैसे देख रहे हैं? सर ये देखें आप, महंगाई पे वो सिर्फ बाहर आते हैं। जी आप देखेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज विद टाइम जो है ना वो चेंज होती हैं। अब आगे इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी जिस आप देखें शहबाज शरीफ साहब आए हैं,
انہوں نے ابھی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, باقی دھرنے سٹارٹ ہو گئے ہیں ساری چیزیں, تو انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی سارے معاملات. یہ اچھا, جو آگے الیکشن ہوگا اس میں کیا سمجھتے ہیں کون سی پارٹی جو ون کرے گی؟ آپ اگر پیچھے آپ دیکھیں جو کنٹونمنٹ کا الیکشن جو ہوا ہے اس سے آپ آئیڈیا لگا لیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا. جس طرح نون لیگ نے کلین سویپ کیا ہے, تو مجھے تو کوئی دوسری پارٹی نظر نہیں آئی اس کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ دوبارہ کلین سویپ کرے گی؟ سر کلین سویپ کرے گی. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو بلدیات ہونے تھے یہ وہ نہیں کرا سکتے. یہ جو مہنگائی ہے, جو یہ ناکام جس طریقے سے یہ لوگ ہوئے ہیں, تو یہ بلدیات نہیں کروا سکتے. عمران خان کو کیا میسیج دیں گے؟ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو کیا میسیج دیں گے؟ میں میسیج یہ دوں گا جی کہ آپ جس طرح سے آپ آئے تھے, لوگوں نے جس طرح سے آپ کو سپورٹ کیا, جو آپ کے سپورٹر تھے ان کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. مطلب نہ آپ نے ان کو کوئی ٹریک دیا. وہ مایوس ہیں. آپ کوئی میرا تو خیال میں گھر چلے جائیں تو بہتر ہے. عوام کو کیا میسیج دیں؟ عوام کو یہ ہے کہ عوام نکلے, ان کو ریئلائز کروائے. جب تک عوام باہر نہیں نکلے گی تو یہ ان کو اپنی غلطیاں ریئلائز نہیں ہوں گی. اسی طرح یہ مسٹیک پہ مسٹیک اور بلنڈر مارتے رہیں گے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عمران خان کو فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ہر انسان کا جینا مشکل کر دیا ہے. کیمرہ مین آصف فاروق کے ساتھ فیصل مقصود, FM نیوز, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد.